My name is Suruchi Rai. I'm assistant professor at Rameshwar Institute of Technology and Management, Lucknow. Today I'm going to deliver a lecture on prescription part 2. In part 2, we'll study about the handling of prescription as well as its error. Let's start. Commonly, these are the commonly used terms. I've already discussed these terms, the latent terms in the previous part 1 lecture of prescription. These are the some other abbreviations of and latent terms of words of a dose as well as administration and its part. Number 1 is BID. BID is the twice a day abbreviation for a drug, for a dose of a drug. So twice a day, the doctor can write, a physician can write this as a B dot I dot D. As well as you have also seen this written as B dot D, which means you need to take a dose of a drug twice a day. Twice a day आपको जो drug है, जो भी medicine आपको prescribe की गई है, वो आपको twice a day लेनी है. Next is 3 times a day. अगर आपको कोई भी डोज, कोई भी ड्रग आपको अगर 3 बार एडमिनिस्टर करनी है, फॉर दैट द एब्रिविएशन इज TID or T.D. Fine. So this abbreviation is written by the physician on the prescription. Prescription भी बहुत बार आपने देखा होगा इस तरह के जो abbreviations हैं वो लिखे होते हैं. नेक्स्ट इज़ 4 टाइम्स अ डे. अगर आपको कोई भी मेडिसिन 4 बार लेनी है दिन में तो आप उसमें इस तरह के एब्रीविएशन देख सकते हैं. द एब्रीविएशन इज़ Q.I.D और Q.D. फाइन. देन द नेक्स्ट इज़ 2 or 3 times a day. 2 or 3 times a day अगर आपको लेनी है, सॉरी दिस इज द 4 टाइम डेज मीन्स आपको 4 टाइम्स लेनी है उसको, एंड दिस इज 2 बार लेनी है या फिर 3 बार लेनी है. अगर आपको दोनों को 2 या 3 बार आप ले सकते हैं, उस तरह का जो एब्रीविएशन है वो यहाँ पे इन दोनों का मिक्सचर होगा. कॉम्बिनेशन ऑफ B.I.D और T.I.D. So here the abbreviation for 2 or 3 times a day is B.T.I.D. So this means you need to take the dose of a drug, need to take a drug 2 or 3 times a day. Fine. The next is if you wanted to take a drug, doctor prescribe the drug for 3 or 4 times a day, then the abbreviation is T.Q.D. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, this is the combination. ये combination है for 3 times a day, this here इसका, and 4 times a day इसका. फाइन. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन. अगर इस तरह का एब्रीविएशन प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा है तो बीइंग अ फार्मासिस्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि कितने टाइम प्रिस्क्राइब किया है पेशेंट को. फाइन. एंड यू शुड टेल द patient that you need to take this drug 3 times, 4 times or 3 to 4 times or 2 to 3 times a day. Next is daily. If you wanted to, if doctor prescribes the drug daily, then you need a QUO dot or indices INDIES. This type of abbreviation is written on the prescription. If the patient needs to take the tablet daily, and being a pharmacist, it's your responsibility to tell the patient that you take this medication daily. Next is if you need to take the medicine early in the morning. आप अगर early in the morning लेनी है तो उस तरह का जो abbreviation लिखा होगा prescription पे, that is prime, PRIM.M. इस तरह का एब्रीविएशन लिखा होगा अगर आपको अर्ली मॉर्निंग मेडिसिन लेनी है, विच विल आल्सो मीन कि अगर आपको एम्प्टी स्टमक लेनी है. इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि एम्प्टी स्टमक अगर आपको मेडिसिन लेनी है तो उस केस में द एब्रीविएशन prime.M, prim.M is written on the prescription. Another is if you need to take the medicine every night. अगर आपको एवरी नाइट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की है डॉक्टर ने, द एब्रीविएशन जो उसके ऊपर लिखा हुआ दैट इज O.N. O.N फॉर एवरी नाइट डोज नीड टू बी टेकन बाय अ पेशेंट, एंड फॉर एवरी मॉर्निंग के लिए जो एब्रीविएशन लिखा होगा दैट इज O.M ऑन द प्रिस्क्रिप्शन. राइट. एंड द लास्ट इज बिफोर मील. अगर आपको बिफोर मील लेनी है, मतलब खाना खाने से जिस पहले आपको मेडिसिन लेनी है, सो उस केस में जो एब्रीविएशन प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा होगा दैट इज A.C.
A.C. तो इस तरह के एब्रीविएशन यू कैन सी ऑन द प्रिस्क्रिप्शन विच आर रिटन बाय द फिजिशियन के द्वारा लिखे जाती हैं, या फिर समटाइम्स sometimes the pharmacist may also write this type of abbreviation on the prescription so that the patient can understand. And being a pharmacist, it is a responsibility for you to make sure that patient should understand the how many times he need to take the medicine empty stomach, need to take the medicine before meal. This all indication which is given needs to be given to the patient by a pharmacist. Next, these are the continuation of the abbreviation as well as the latent terms along with the English meaning of it. The next is before food. If before food, medicine needs to be taken before food, or we should say the meal, A.C abbreviation is written on the prescription. Next is after meal. For after meal the abbreviation is P.C. Next is after meal, after food, the same abbreviation is used. Then between meal, खाने के बीच में अगर आपको लेनी है, most of the times जो enzymes होते हैं, you need to take basically the pancreatic enzymes जो आपके food को digest करते हैं. इस तरह के medicines जो होते हैं, इस तरह के जो enzymes होते हैं, you need to take that medicines in between your meals. मतलब खाना खाने के बीच में आपको medicine लेनी होती है. उस तरह का जो abbreviation है, इस तरह की direction जो पेशेंट जो फिजिशियन है पेशेंट को देते हैं, दे रिटन दैट एब्रीविएशन लाइक I.C. I.C का मतलब है कि आपको मेडिसिन जो पेशेंट को लेनी है वो मेडिसिन इन बिटवीन द मील्स लेनी है, खाना खाने के बीच में लेनी है. दैट इज एब्रीविएटेड एज I.C. फाइन. द नेक्स्ट इज एज डायरेक्टेड. जो भी आपको डायरेक्शन दी गई है, अगर आपको बोला गया है तो उसमें डॉक्टर क्या करेंगे, दे राइट द एब्रीविएशन M.D. मीन्स जो भी आप इंफॉर्मेशन आपको दी गई है आपको उसके अकॉर्डिंग उसको लेना है, तो उसको एब्रीवेट किया जाएगा M.D के साथ. अदर इज व्हेन द कफ इज ट्रबलसम. जब आपको कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस केस में आपको क्या लेना है, उस टाइम पे आपको लेना है तो उसको लिखा जाएगा TURG. TUSS. and URG. Right. Then the second last is to the affected part. affected part का मतलब है जहाँ पे भी आपको एलर्जी हुई है, कोई चोट लगी है या फिर इन्फेक्शन है, that area is called as the affected part. affected part पे अगर आपको कुछ क्रीम, बेसिकली ये यूज़ किया जाएगा फॉर द क्रीम, फॉर द लोशन, जो भी आप ऑइंटमेंट कुछ लगाते हैं या फिर जेल. In that case, this type of abbreviation is used if you need to apply the medication or the formulation on the affected part. So affected part सबको समझ में आ गया होगा. I think the affected part वो part है जहाँ पे इन्फेक्शन है, जहाँ पे आपको जो भी मेडिकेशन है या फिर फॉर्मुलेशन है वो अप्लाई करनी है, दैट इज़ द affected part. affected part के लिए अगर एब्रीविएशन लिखा जाएगा, दैट एब्रीविएशन इज P.A. Clear? And the last is for आई. ऑक्यूलर का मतलब है आई के लिए. ऑक्यूलर से समझ आना है आपको कि ऑक्यूलर मतलब है आई, या फिर ऑफ्थेल्मिक वर्ड अगर आप कहीं पे लिखा देखते हैं दैट मीन्स फॉर आई, वो आँखों के लिए है. सो अगर आपको कोई भी फॉर एग्जांपल आई ड्रॉप है और द ऑइंटमेंट, आँखों के लिए ऑइंटमेंट भी आता है. सो इस तरह का अगर फॉर्मुलेशन है तो उस केस में अगर आपको अब आई पे अप्लाई करना है, इन दैट केस द डॉक्टर राइट द एब्रीविएशन ऑक्यूलर, OCUL. Ocul dot. Fine. The next we're coming to the handling of prescription. Now the prescription, the physician write the prescription, already write the medication on the prescription. Now the prescriptions come to the pharmacist. अब वो prescription किसके पास है, pharmacist के पास आता है. Being a pharmacist you should know कि प्रिस्क्रिप्शन को किस तरह से हैंडल करना है. जब आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आता है तो आप उसे किस तरह से हैंडल करेंगे. सो हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो इसको कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट में. नंबर 1 पार्ट इज़ रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन. सबसे पहले फार्मासिस्ट उसको रिसीव करेगा. सो इसके अंदर बहुत सारी इंडिकेशंस हैं कि फार्मासिस्ट जब रिसीव करता है प्रिस्क्रिप्शन को तो उसकी किस तरह की गेस्चर होने चाहिए. ही शुड नॉट गिव एनी फेसेस, कुछ फेस नहीं बनाना है, कुछ शॉक नहीं होना है प्रिस्क्रिप्शन को देख के, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स अफेक्ट द पेशेंट.
वो पेशेंट को अफेक्ट कर सकती हैं. सो रिसीविंग ऑफ अ प्रिस्क्रिप्शन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक बीइंग अ फार्मासिस्ट हम लोगों को याद रखना है. शुड नो कि किस तरह से प्रिस्क्रिप्शन को हम हैंडल करेंगे. हैंडलिंग में सबसे पहला पार्ट है रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट इज चेकिंग, रीडिंग एंड चेकिंग द प्रिस्क्रिप्शन. सबसे पहले आप प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करेंगे, देन उसको रीड करना है कि कौन से मेडिकेशन लिखी हुई है उसके ऊपर, एंड देन यू नीड टू चेक, रीड एंड चेक कि उसके अंदर कुछ भी गलत मेडिकेशन ना लिखा हो, बिकॉज देयर इज चांसेस, बिकॉज देयर आर मेनी ड्रग आर देयर इन द मार्केट, सो दे हैविंग अ सिमिलर नेम हो सकते हैं. सो उस केस में शुड रीचेक इट, चेक इट प्रॉपरली दैट वट एवर द मेडिकेशन इज prescribed by a doctor, it must be the same that you are dispensing. जो मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो सेम मेडिकेशन ही आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको ये चेक करना है. क्लियर? डिस्पेंस करें, यू नीड टू चेक दैट. द थर्ड इज कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग. आप कंपाउंड करेंगे, सबसे पहले उसको बनाएंगे. मेडिकेशन के अंदर जो भी इंडिकेशन आपको दे रखी हैं सब्सक्रिप्शन के अंदर, यू नीड टू मेक अ पाउडर, यू नीड टू मेक द इमल्शन, यू नीड टू मेक द सिरप, ये सारी आपको फॉर्मुलेशन बनानी है. बनाने के बाद यू शुड लेबल. पैकिंग करेंगे. पैकिंग भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे बहुत से ड्रग हैं जिनको आपको डबल रैप करना है. डबल रैपिंग करेंगे तो आप उसमें, बट नाउ डेज प्रीवियसली फार्मासिस्ट label the medication, he packed the medication, but nowadays already market से, already industry से, pharmaceutical industries पैक करके लेबल करके ही ड्रग्स को देते हैं. तो nowadays जो फार्मासिस्ट हैं, दे डायरेक्टली डिस्पेंस द ड्रग टू दी पेशेंट. बट प्रीवियसली क्या होता था, फार्मासिस्ट को उसको लेबल करना होता है, जो भी मेडिकेशन वो डिस्पेंस करते हैं, एंड एज वेल उसको पैक करना होता है. सो इन दैट केस फार्मासिस्ट शुड नो कौन से ड्रग्स की इनकम्पैटिबिलिटी है, कौन से दो ड्रग को हम एक साथ नहीं रख सकते. फाइन. एंड नीड टू पैक दैम प्रॉपरली. उसको पैकिंग कैसी होनी चाहिए, पैकिंग के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि ऐसी ड्रग्स, ऐसी फार्मुलेशन जिनको हमें लाइट से बचाना है, दे आर लाइट सेंसिटिव, तो हम उसको रोशनी में नहीं रख सकते. लाइट सेंसिटिव और फोटो सेंसिटिव दोनों सेम वर्ड्स हैं, तो इसके लिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे. सो फोटो सेंसिटिव और लाइट सेंसिटिव का मतलब है ऐसी फॉर्मुलेशन को हम लाइट से दूर रखेंगे, सनलाइट से दूर रखेंगे, नॉर्मल लाइट से दूर रखेंगे. सो ऐसी फॉर्मुलेशन को डार्क स्पेस में हमें रखना है. तो ये जो इंडिकेशन है, कीपिंग द फॉर्मुलेशन अ डार्क प्लेस, ये इंडिकेशन फार्मासिस्ट को फॉर्मुलेशन पे लिखनी है वाइल ही और शी इज डिस्पेंसिंग अ ड्रग, डिस्पेंसिंग अ फॉर्मुलेशन. सो इस तरह की डायरेक्शंस आपको लिखनी है उसके ऊपर. सो पैकेजिंग भी उसकी उस तरह से होगी. पैकेजिंग के केस में हम क्या करेंगे, ऐसे फॉर्मुलेशन को स्टोर करेंगे, पैक करेंगे इन अ एम्बर कलर बॉटल. एम्बर कलर बॉटल आप सबने देखी होगी, कुछ ब्राउन और ब्लैक कलर के कलर में होती है. ऐसी बॉटल्स को अंदर आप नहीं देख सकते. उसमें क्या होता है, एम्बर कलर बॉटल इज़ मेड बिकॉज इसके अंदर सनलाइट या नॉर्मल लाइट उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती. सो ऐसी फॉर्मुलेशन की पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ऐसे ड्रग्स जिनको अगर आप ओपन एयर में रखेंगे तो उनके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, सो मॉइस्चर ना गेन करे. सो ये भी आपको ध्यान रखना है, बी ए फार्मासिस्ट व्हेन यू आर डिस्पेंसिंग द ड्रग टू द पेशेंट. Then this is all about the compounding, labeling and packaging. The final is filing, pricing and delivery of the medication to the patient. Filing means you should make a register. From each and every pharmacy should make a register when he or she is dispensing a medicine. जब आप कोई भी मेडिसिन किसी पेशेंट को देते हैं तो आपके पास एक पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए. हिस्ट्री ऑफ अ पेशेंट, पूरी पेशेंट प्रोफाइल का एक पूरा रजिस्टर आप बनाएंगे. एंड इन दैट रजिस्टर यू शुड राइट कि आपने कौन सी मेडिसिन उस पेशेंट को डिस्पेंस की है, उस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन से क्या एलर्जी है और उसकी डिसीज़ कंडीशन क्या है. दिस ऑल इंफॉर्मेशन कम्स अंडर द फाइलिंग सेक्शन. Filing is very important part when a pharmacist is dispensing a medicine to a patient. Then comes the pricing. Pricing के अंदर भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट की कॉस्ट अलग होती है. द कंटेनर इन विच वी आर डिस्पेंसिंग द मेडिसिन इज़ इम्पॉर्टेंट, उसका एक कॉस्ट अलग होता है. सो वो भी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको दिखाऊंगी कि हाउ द प्राइस ऑफ द ड्रग और अ फॉर्मुलेशन इज सेट.
Then after the pricing, the delivery is very important because delivering a medicine, for example अगर आपने medicine को बना दिया है, you have written the direction, आपने अच्छे से पैक कर दिया है, but delivery जो होती है to the patient is direct और indirect. डायरेक्ट केस में क्या है कि डायरेक्टली पेशेंट आएगा. इन डायरेक्ट डिलीवरी यू कैन कम्युनिकेट विद द पेशेंट, आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ इनडायरेक्ट डिलीवरी, इनडायरेक्ट केस में क्या है कि पेशेंट के घर में आपने होम डिलीवरी करवा लिया है, तो इन दैट केस आप उससे पेशेंट से बात नहीं कर सकते. यू नॉट एबल टू गेट द पेशेंट हिस्ट्री. इन दैट केस यू ऑल्सो नीड टू नो हाउ टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट एंड गेट इट्स डिसीज हिस्ट्री. So these are the important point while you are handling the prescription. So in written you can write these points जब आप इसके बारे में लिखेंगे. So receiving a prescription के अंदर है, it should always be received by the pharmacist himself. हमेशा pharmacist को खुद उसको prescription को लेना है जब भी डॉक्टर से आता है prescription. So waiting area के अंदर patient को बिल्कुल comfort होना चाहिए और बिल्कुल clean होना चाहिए so that उसको वहाँ से कोई infection ना हो जाए. Next is while receiving the prescription, a pharmacist should not make any comments. आप किसी भी तरह की कोई comment नहीं करेंगे. Whenever you are receiving a prescription, you not say anything. If you have any confusion, you cannot talk to the doctor in the front of the patient. आप पेशेंट के सामने डॉक्टर से बात नहीं करेंगे, आपको साइड में जाकर डॉक्टर से बात करना है. If in case you are not able to understand any drug which is prescribed on the prescription. Next is you should not even make any expression नहीं बनाने हैं. Don't make confused face. आपको confused face नहीं दिखाना है पेशेंट को, आपको बिल्कुल नॉर्मल देना है. because if you make confused faces then patient may get feared. पेशेंट डर सकता है. इस तरह से अगर आप उसको प्रिस्क्रिप्शन दे के ये इस तरह के फेजेस बनाएंगे या कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन देंगे, तो इस तरह की जो पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं while you are receiving the prescription. Next is reading and checking. Reading and checking is also very important so that you do not do any mistake. So the proper scrutiny of the prescription should not be attempted in the presence of the patient. आप अगर उसको scrutinize कर रहे हैं तो पेशेंट के सामने आपको confusion नहीं दिखाना है, उसके सामने आपको इस तरह से नहीं दिखाना है कि आपको कोई मेडिसिन समझ में नहीं आ रही है. So you should talk to the doctor in a separate area where the patient is not there. Then another is any difficulty in reading and the prescription may not be solved by consulting senior pharmacist. आप सीनियर फार्मासिस्ट से बात कर सकते हैं या फिर फाइनली आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं. बट अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, अगर बीइंग अ फार्मासिस्ट यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन द प्रिस्क्रिप्शन, तो आप इसमें फिजिशियन से ही बात करेंगे. बट आप गलत अंदाजे से आप वहाँ पे अंदाज़ा नहीं लगा सकते, अंदाजे से मेडिसिन को डिस्पेंस नहीं कर सकते. सो नेक्स्ट इज़ इलीगल. अगर हैंड राइटिंग है, इलीगल राइटिंग आप नहीं लिखेंगे. अगर आपने पेशेंट को इंडिकेशन देना है कि आपको 2 बार लेनी है, 3 बार लेनी है या खाने से पहले लेनी है, दीज टाइप ऑफ इंडिकेशन शुड बी रिटन इन वेरी क्लियर वर्ड्स एंड इन क्लियर राइटिंग. बहुत ही क्लियर वर्ड्स में, क्लियर राइटिंग में लिखा होना चाहिए. Next is compounding, labeling and packaging. Compounding I've already told you. Compounding means after reading and checking the prescription, the pharmacist should dispense the medicine. Dispense कर सकता है medicine को. Before compounding के case में should know whatever the instrument, whatever the equipment the pharmacist is using to make the medicine, to make the formulation, he should be clean. That equipment should be cleaned so that no contamination will be there in the formulation which you are dispensing to the patient. The next is labeling. Labeling should be proper indication, proper direction should be written on the simple words. Simple words में direction on the medicine is important, because if direction is not clear, the patient might have take that drug in confusion and take the larger amount of dose of that particular formulation. So direction should be written very clearly and label should be fixed with the strong adhesive. Adhesive का मतलब है अच्छे से चिपकना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी जो फॉर्मुलेशन आपने डिस्पेंस की है उसको अगर लॉन्ग टाइम तक अगर पेशेंट स्टोर करता है, सो उसका जो लेबल है वो लेबल ही उससे हट जाए. सो लेबलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज लेबलिंग अगर नहीं रहेगी तो पेशेंट कन्फ्यूजन में आके ही माइट टेक अनदर ड्रग, उसकी ज़्यादा डोज हो सकती है, कोई और मेडिकेशन ले सकता है. सो ये लेबलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट.
Then another is packaging. Final packaging of the container is done in a neat cartons or bag. अच्छे कंटेनर्स को जो अगर छोटे छोटे कंटेनर्स हैं उनको एक अच्छे कार्टून में और बैग में पैक करना है सो दैट उसमें से कोई भी लीकेज ना हो और ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सके. लूज़ पेपर्स जो होते हैं, लूज़ पेपर्स या लूज़ बैग्स को हम यूज़ नहीं करते हैं. इस तरह की जो पैकेजिंग होती है, लूज़ पैकेजिंग नहीं करनी है किसी भी फॉर्मुलेशन के. नेक्स्ट इज फाइलिंग, प्राइजिंग एंड डिलीवरी ऑफ द मेडिकेशन टू द पेशेंट. फाइलिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द फाइलिंग. फाइलिंग का मतलब है मेंटेनिंग द रिकॉर्ड. यहाँ पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड को मेंटेन करना है. और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप एक भी मेडिसिन किसी को देते हैं, बीइंग अ फार्मेसी शुड राइट दैट इनटू द रजिस्टर. आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है सो दैट आप ईच एंड एवरी मेडिकेशन अलॉन्ग विद द अमाउंट, कितना डोज आपने पेशेंट को दिया है, यू शुड ऑल्सो राइट दैट इनटू द रजिस्टर. तो दैट्स कम्स अंडर द फाइलिंग पार्ट. तो फाइलिंग के अंदर इफ़ यू राइट दिस इन अ लैंग्वेज, यू कैन राइट इट लाइक filing and maintaining the record of prescription depends upon how frequently and expediently one has to refer to it. कितनी बार आपको लेनी है, फ्रीक्वेंसी भी आप उसमें लिखेंगे. शुड राइट द फ्रीक्वेंसी, शुड राइट द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, डिजीज कंडीशन, इट वेदर डिजीज इज एक्यूट और इट्स क्रॉनिक. Next is registers maintained in which all the prescription dispensed are date wise as well as serial wise. History is important to keep with him, the pharmacist should keep with him. Next is register has the following number of columns. आपके जो रजिस्टर, हम एक फार्मासिस्ट का जो रजिस्टर होता है उसके अंदर ये जो कॉलम्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे कॉलम्स होने चाहिए. नंबर 1 इज़ सीरियल नंबर. सीरियल नंबर, और ये जितने भी सीरियल नंबर्स होते हैं, एवरी प्रिस्क्रिप्शन का सीरियल नंबर अलग होगा. ये रजिस्टर हम क्यों बनाते हैं, रजिस्टर इसलिए बनाना है बिकॉज बाई चांस अगर डॉक्टर उस प्रिस्क्रिप्शन को नहीं देखना चाहता है, दोबारा देखना चाहता है, और अगर कोई पेशेंट है उसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है, तो इन दैट केस अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग या फिर विद द हेल्प ऑफ अ नेम ऑफ अ पेशेंट उसको निकाल सकते हैं. एंड यू कैन सी कि कौन से मेडिकेशन प्रोवाइड की गई है, कौन से मेडिकेशन उसको दी गई है, कितना अमाउंट और कितना डोज उस पेशेंट को दिया गया है. In case patient have adverse effect, he might have toxicity, they might have allergic to some drug, so you can see which drug is prescribed to the patient and उससे हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें से देख सकते हैं. So that's why the filing is important. In filing, these are the following columns. Number 1 column is serial number. Number 2 is the date. The date जिस date पे जो medication है जो dispense की गई है to the patient, वो date लिखनी है. And the name of the patient is important. Patient का नाम क्या है. And inscription means, inscription का मतलब आप सबको पता चल गया होगा. अब inscription का मतलब है the name, the amount of dose which is given to the patient or prescribed to the patient. So this is the pricing part. Pricing of prescription. Pricing of prescription, there are the several inputs that govern the price of the prescription. जितना भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है उसको प्राइसिंग किस तरह से होगी, उस प्राइसिंग के लिए नंबर 1 इज़ कॉस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट. जितने भी इंग्रेडिएंट उस फॉर्मुलेशन के अंदर, उस ड्रग के अंदर ऐड हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है. इंग्रेडिएंट्स की, इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स की जो कॉस्ट होती है वो उसके अंदर इंक्लूड होती है. देन द कॉस्ट ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर के अंदर उसको पैक किया जाता है फॉर्मुलेशन को, उसकी कॉस्ट भी उसके अंदर इंक्लूड होती है. द नेक्स्ट इज़ द लेबर कॉस्ट. लेबर जो उसको बनाने के लिए, द फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, व्हाट आर द लेबर, द नंबर ऑफ पीपल नीडेड, उनकी जो कॉस्ट होती है, दे हैव आल्सो एडेड इनटू द फॉर्मुलेशन द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, वो भी उसके अंदर कॉस्ट ऐड होती है. ओवरहेड चार्जेस और भी जितने भी अदर स्मॉल चार्जेस हैं वो सारे उसके अंदर इंक्लूड होते हैं. जो प्रोफेशनल इसको प्रिस्क्राइब कर रहा है उसकी फ़ीस भी इसके अंदर ऐड होती है. लास्ट में प्रॉफिट आता है एंड उसके बाद आपका टोटल प्राइस ऐसे बनता है. टोटल प्राइस बनता है इंक्लूडिंग दिस प्राइस, इन सब के जितना भी प्राइस होगा उन सबको प्लस करेंगे, देन यू विल गेट दी टोटल प्राइस ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द ड्रग विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय अ फिजिशियन. So this is about the handling. The last is delivery. Delivering the medication to the patient means you can deliver the drug in the 2 way. Direct system of delivering or indirect system of delivering. In direct system of delivering, the pharmacist is able to establish a direct contact with the patient.
डायरेक्ट मेडिकेशन क्या है, अगर आप केमिस्ट के स्टोर पे गए हैं, आपने उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया है एंड फार्मासिस्ट ने आपको मेडिसिन दे दी है, दैट इज़ अ डायरेक्ट सिस्टम of delivering the medication. But in case of indirect system, these are the 3 points, which means delivering can be affected at the window. आप फार्मासिस्ट को देखा ही नहीं है, फार्मासिस्ट ने जो भी मेडिकेशन है वो आपको अलग एक विंडो में जाके मिल जाती है, वहाँ पे है, एंड यू नॉट एबल टू मेक कॉन्टैक्ट विद दी फार्मासिस्ट. नेक्स्ट इज़ द रेसिडेंस. आपके रेसिडेंस मतलब होम डिलीवरी अगर मेडिकेशन की हुई है, जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है. द अदर इज़ बाय पोस्ट और बाय कोरियर अगर आप मेडिकेशन लेती हैं, दैन वो भी किस कैटेगरी में आती है, इनडायरेक्ट डिलीवरी के केस में आती है. सो इस केस में, इनडायरेक्ट के केस में फार्मासिस्ट उससे बात नहीं कर सकता पेशेंट से. देन द नेक्स्ट इज लास्ट इज एरर्स. एरर्स इस तरह के एरर्स हो सकते हैं, मेडिकेशन एरर हो सकता है, गलत डायग्नोस कर लिया है डिसीज़ को, मेडिकल जो प्रोसेस बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है वो गलत है. तो ये परसेंटेज ऑफ एरर्स हैं जो चांसेस हो सकते हैं आपके प्रिस्क्रिप्शन के अंदर. कम्युनिकेशन, गलत कम्युनिकेशन कर लिया है, लैब के रिजल्ट्स आपके गलत है, आपका इक्विपमेंट अगर गलत है, तो इस तरह के चांसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर एरर्स आ सकते हैं. दीज आर द लास्ट एरर्स. लास्ट एरर्स इज हॉस्पिटल के अंदर चांसेस कितने हैं एरर्स के, 48% चांस है कि हॉस्पिटल के अंदर प्रिस्क्रिप्शन में एरर हो गए हैं. नेक्स्ट इज डॉक्टर की ऑफिस में कोई एरर हो सकता है, ऑपरेटिंग रूम, क्लिनिकल, एमरजेंसी रूम में कोई चांसेस हो सकते हैं एरर के. फार्मेसी, आप घर पे कोई गलत मेडिकेशन अगर पेशेंट ने ले ली है, उसके चांसेस भी 3% चांसेस है कि रॉन्ग मेडिकेशन है. देन नर्सिंग होम एंड 5% अदर एरर्स. दीज आर द एरर्स which may occur in the prescription. So इन सारे errors को overcome करना है. Being a pharmacist, responsibility for us to overcome these errors. So these are the references from where I've taken this data. This is all for today. Thank you.